Hello everyone. I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is our lecture 10. So let us see what we can expect from this lecture. First of all, let's see the highlights. What we will do, we will first understand the concept so that we get to know what are the basic nitty-gritties that underlie the concept. उसके बाद we will make notes. Notes में we will add value so that our answer stands out. What will make our answer stand out is the value addition through diagrams, through examples, case studies, and the name of the anthropologist from various corners of the world. At last, we will have a look at previous year questions to know whether we are able to attend the previous years or not. Okay, so now let's get started. This is our syllabus part 2.2, which is society. So first of all, the first question that comes to our mind is what is society? Society है क्या? और एग्जामिनर भी डिफाइन सोसाइटी ऐसे करके आपसे 20 मार्कर या 15 मार्कर पूछ सकता है. तो इफ इट इज अ 20 मार्कर, गिव एटलीस्ट 3 definitions of society along with their explanations. And if it is a 15 marker or it is a 10 marker, then give 2 definitions. Out of them, explain only one and not the other. Okay, so now let's see the definition. The anthropologist Parson, in his work The Structure of Social Actions, has defined society as a complex, total human relationship as far as they grow out in terms of action, in terms of mean and relationship, intrinsic and symbolic. So पहले नजर में देखने में हमें ये डिफिकल्ट लग सकती है, बट प्लीज अगर हम इसके प्लीज समझिए कि अगर हम इसके कीवर्ड्स को पकड़कर एक एक करके समझेंगे तो दिस डेफिनेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल see that you do experience this definition of society in our daily lives because we also are a part of some society. So first of all, it is complex, means it is not simple. Why is it not simple and why is it complex? क्योंकि ये है human relationships के बारे में. अब human relationships का एक वेब होता है सोसाइटी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ईगो मीन्स यू, आप हैं, आपके चारों तरफ रिलेशनशिप्स का एक वेब होगा. आपके मैटरनल साइड से, आपके पैटर्नल साइड से, आपके नेबर्स में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, और आपका पीयर ग्रुप. इस तरह से यू विल ऑलवेज बी सराउंडेड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई सोसाइटी कैन नेवर बी सिंपल. और ऐसा सोसाइटी का हर मेंबर के साथ है. ओके, दैट्स व्हाई सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स. नाउ, अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जब ये एक्शन में आती हैं, क्यों आएंगी एक्शन में? क्योंकि हमें मीन एंड रिलेशनशिप को फुलफिल करना है. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, हमारे फादर हैं और हम छोटे हैं, तो वी नीड इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम आवर फादर. सो व्हाट इज द मीन्स हियर? Money is the means. And what is the end? End is economic stability. Okay. So, okay. Um, so here our mean ends relationship, I have told you, it is intrinsic. It is not something very explicit or very much presentable. You cannot touch it. It has no physical form and it is abstract. Okay, that's why it is said that it is intrinsic. Furthermore, it is symbolic. What does symbolic means? इसका मतलब है कि कोई जो एक चीज हम देखते हैं, उसका वो मतलब ना होकर कोई और मतलब होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये चीज रखूं, तो वैसे तो ये कुछ नहीं है, बट अगर आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सिंबल है हिंदू रिलीजन का. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक. ऐसे ही इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इफ यू सी, हम देखते हैं कि 7 फेरे आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर 7 फेरे? दे डू सिग्निफाई द 7 lives and the lifelong partnership with our present partner for 7 lives. Okay, so this was the definition by Parson. If we move on to the next definition, the next one is given by Augustus Comte. Now, he gave this definition in his work System of Positive Polity. इसमें he defined society as an organism that possesses harmonious structure and function. अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. Now, why he has called society as an organism? See, एक organism में क्या होता है? एक पूरी body होती है, उसके अंदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं. हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है, अपना एक प्लेस होता है. ठीक है, ऐसे ही हमारी एक सोसाइटी है और उसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स है. फॉर एग्जाम्पल, ये मैरिज है, ये फैमिली है, ये इकोनॉमी है, ये सोशल कंट्रोल है. अब ये सब हार्मनी में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद लड़की जाती है अपने ससुराल में, वहां पे शुरू होती है एक नई फैमिली.
तो इसी तरह से फैमिली और मैरिज के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है। अगर ये डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऑर्गन काम करना बंद करता है तो पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसी तरह से सोसाइटी में हार्मोनियस अगर रिलेशनशिप नहीं होगा, इसका मतलब अगर कोई एक ऑर्गन फेल हो जाएगा तो पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू, अगर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज फेल्स इन अ सोसाइटी, इट विल हैव अ क्लियर कट इम्पैक्ट ऑन द institution of marriage in that society. So that's why Augustus Comte called it as a organism. Now, the next definition to us given by another anthropologist, McGee. Now, he defines society as the largest indistinguishable unit of human interactions having common pattern of social organization that regulates the interaction. नाउ इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे और उनको एक्सप्लेन करके समझेंगे कि इन्होंने सोसाइटी के बारे में ऐसा क्यों बोला या इन्होंने ये वाली डेफिनेशन क्यों दी। ओके, सो नाउ सी, दिस इज द लार्जेस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल यूनिट। इसका मतलब फैमिली जो है वो एक डिस्टिंग्विशेबल यूनिट है दूसरी फैमिली से, लेकिन जब सारी फैमिलीज को एक सोसाइटी में रखा जाएगा तो इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट यूनिट, यानी कि एक सोसाइटी इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके अंदर सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, सारे वो सोशल एलिमेंट्स आ जाएंगे जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, फैमिली, द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल which we will study in detail in the later part of our syllabus. Okay, अब organization that regulates the interaction. फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी में बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है, तो कोई भी जो एल्डर्स होते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर अलग होता है, जो हमारे पीयर्स होते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर अलग होता है, और जो हमसे यंगर जनरेशन होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स आवर इंटरेक्शन। ओके, द इंटरेक्शन ऑफ वन मेंबर ऑफ सोसाइटी विद अनदर मेंबर। So these are the three definitions and I have made you understand। आप क्या करेंगे, एक एक कीवर्ड को उठा के ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके सामने उसे ब्लू पेन से एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे, तो इससे आपका 20 मार्कर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी रिपीट, 20 मार्कर में आप क्या करेंगे, तीनों डेफिनेशन देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लेक्स, मीन्स एंड रिलेशनशिप, इंट्रिंसिक, सिंबॉलिक, इन सब कीवर्ड्स को उठा के इसी डेफिनेशन के नीचे एक्सप्लेन करेंगे। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलमोस्ट एक पेज इसमें भर जाएगा और इसी तरह आपके 3 to 3.5 पेजेस भर जाएंगे इस 20 मार्कर को कंप्लीट करने में, विच इज द सफिशिएंट स्पेस कवर्ड बाय यू फॉर अ 20 मार्कर। ओके, सो हमारी डेफिनेशन हो गई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ। नाउ इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, एज फार बैक इज इन एरिस्टोटल के टाइम पे उन्होंने बोल दिया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका मतलब सोसाइटी इज असेंशियल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कैसे ना, मैन इज अ सोशल एनिमल का मतलब है ह्यूमन अलोन नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते, मान लो अगर हम अलोन होते तो हमें लैंग्वेज नहीं आती, हमें किस तरह से बिहेव करना है वो नहीं पता चलता। ओके, तो हमें एक सोसाइटी में रहने के लायक एक सोसाइटी बनाती है, एक कल्चर बनाता है, और अगर हम उस सोसाइटी में नहीं रहते हैं तो हमारा बिहेवियर बाकी एनिमल से कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा। ओके, इसीलिए ह्यूमन, हमें ह्यूमन बनने के लिए, एनिमल से ह्यूमन बनने के लिए हमें सोसाइटी की जरूरत है। इट इज असेंशियल फॉर अस। अब अब हम आगे जाके जब थ्योरीज पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, तो उसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनिस्ट, फंक्शनलिस्ट। तो इसमें देखिए, इवोल्यूशनिस्ट जो थे वो कहते थे कि किस तरह से एक सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, किसी भी चीज का इवोल्यूशन, रिलीजन का मान लीजिए, सोसाइटी का मान लीजिए, किस तरह से हुआ है वो इवोल्यूशनिस्ट बताते थे। ओके, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। कैसे, उन्होंने सीधा बोल दिया, उन्होंने सीधा बोला कि सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेजरी में होती है, देन बार्बरिज्म में, और लास्ट में आती है सिविलाइजेशनल स्टेज, और इसके बाद वो इवोल्व होना बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वो अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है कोई भी सोसाइटी, और इससे आगे इवोल्व नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इवोल्यूशनिस्ट का कहना था। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा कल्चर कैसे इवॉल्व करता है, तो भी उन्होंने यही कहा कि कल्चर का सबसे पहली स्टेज होती है सेवेजरी, देन वो मूव ऑन होते हैं बार्बरिज्म पे, फिर वो आ जाते हैं सिविलाइजेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जांपल दैट दे गिव कि सेवेजरी ट्राइबल्स में देखी जाती है,
एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में देखी जाती है बार्बरिज्म, और सिविलाइजेशन देखी जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। ओके, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज से बियॉन्ड आप मूव नहीं कर सकते, ऐसा इवोल्यूशनिस्ट ने कहा। तो इसका मतलब कल्चर और सोसाइटी एज टू डिफरेंट कंसेप्ट हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गए। तो अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुई अमेरिका में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुई ब्रिटेन में, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब इन दोनों की फाइंडिंग्स को मिलाया गया तो इन्होंने देखा कि कल्चर और सोसाइटी में कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस हैं जो अब अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, उन डिफरेंशिएशंस के बेस पे इन्होंने कहा कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसीलिए कल्चर और सोसाइटी दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आए फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट क्या करते थे कि कोई भी जो कंसेप्ट है किसी भी सोसाइटी में, मान लीजिए रिलीजन है या कुछ भी है, उसका फंक्शन क्या है, वो उस सोसाइटी में एग्जिस्ट ही क्यों करता है, ये हमें फंक्शनलिस्ट बताते थे। और इसी बेसिस पे ये बताते थे कि क्यों वो जो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे मैरिज, फैमिली, रिलीजन, सोशल कंट्रोल, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन फुलफिल करते हैं। ओके, तो फंक्शनलिस्ट ने कहा कि ह्यूमन एग्जिस्ट डू नीड सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर नीड्स एंड हेंस केम द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। कैसे कैसे टू फुलफिल देयर नीड्स, फॉर एग्जांपल मैरिज। मैरिज में क्या करता है कोई भी आदमी, लेजिटिमेटली अपना एक पार्टनर एक्वायर करता है जो उसकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वाली नीड्स को फुलफिल करता है। इसके अलावा वो ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं जिससे कि सोसाइटी और उनका परिवार आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ये भी सोशल नीड्स को पूरा करता है। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की इमोशनल सपोर्ट की तरह काम करते हैं, फ्यूचर इमोशनल सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ओके, तो इसी तरह हर सोसाइटी में जितने भी ऑर्गन हैं उनका सभी का कोई ना कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शनलिस्ट्स ने कहा। इस तरह से डेवलपमेंट हुई इस कंसेप्ट की। मेन यहाँ पे ये है, इसे आप हाईलाइट करेंगे, अगर कहीं भी आपको आंसर में लिखना पड़ जाता है देन डू हाईलाइट दिस वन। और इस तरह का डायग्राम जब भी आप बनाएंगे उसे बॉक्स में डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी बहुत ही नीट लगती है, जिससे एग्जामिनर आपको हाफ मार्क या 1 मार्क एक्स्ट्रा देता है। और ऐसा ही हाफ या 1 मार्क अगर आप हर क्वेश्चन में पुल करने के लिए काबिल हो जाते हैं तो इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज इन योर रैंकिंग। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन, लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। अब यहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम ध्यान रखें कि हर जगह डालना है, और जहां भी आप डालें आंसर में क्या कर दें, इसको ऐसे रेक्टेंगल में डाल दें। अब मैक्यूवर ने क्या कहा कि सोसाइटी हब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप्स के वेब में घिरा हुआ होता है। ऐसे ही एक्शन एंड स्टेटस ऑफ एवरी मेंबर इज रिकॉग्नाइज्ड, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटस और रोल और ये सब अभी आगे आएगा सोसाइटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोसाइटी इज बेस्ड ऑन लाइकनेस। इसका मतलब जो भी कोई सोसाइटी है उसमें जितने भी तरह के लोग रहते हैं उन सब में कोई ना कोई लाइकनेस जरूर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइब्स हैं उनमें कस्टम सेम होता है सभी का, और ये उन सब ट्राइब मैन को फीलिंग ऑफ यूनिटी देता है लाइकलीनेस की वजह से। ऐसे ही जो हिंदूज हैं उनका कल्चर सेम है, मुस्लिम्स का कल्चर सेम है। और मान लीजिए ये पूरी सोसाइटी है, इसको कौन पूरे एक सूत्र में बांधता है, नेशनलिज्म। जैसे कि बन गई इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज डाइवर्स बट यूनिफाइड। ओके, तो हमारी लाइकलीनेस नेशनलिज्म पे बेस्ड है। हालांकि हमारा बेशक कल्चर सेम ना हो, हमारा कुछ भी सेम ना हो, लेकिन हमारा नेशन सेम है। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है, जो लाइकनेस पैदा करती है, उससे हम वी आइडेंटिफाई ईच अदर एज वन। ओके, इसके बाद सोसाइटी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन लाइकनेस, सोसाइटी अकोमोडेट डिफरेंसेस एज वेल। मतलब व्हाई इट इज सेड, अगर सोसाइटी डिफरेंसेस नहीं रिकॉग्नाइज करती है देन इट लूजेस ऑन सोशलिटीज और सोशल रियलिटीज। फॉर एग्जांपल, फैमिली इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सेक्सेस। ओके, बट डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंडरी टू लाइकनेस। अब जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में है, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, लेकिन सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। कैसे, नेशनलिज्म के थ्रू। तो ये सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं जब बात नेशनलिज्म की आती है। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। उसके बाद देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी।
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, इसका मतलब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को पालते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि जब वो बूढ़े होंगे तो वो जो भी उनका बच्चा है वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सो दिस इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ओके, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड बचपन में पेरेंट्स करते हैं बच्चे की और बुढ़ापे में बच्चे करते हैं पेरेंट्स की। ऐसे ही ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आप इसे भी मान सकते हैं, जैसे मैन गो आउट टू अर्न मनी तो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है। ऐसे विमेन डू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली एंड द क्लीनलीनेस एंड द फूड कुकिंग एटसेट्रा, तो ये भी एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। जैसे कि एग्जाम्पल भी बोल रहा है दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन फैमिली अमंग द मेंबर्स, एट लास्ट देयर इज कोऑपरेशन। अब देखिए सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होंगे, इंटरडिपेंडेंस भी होगी, लेकिन कोऑपरेशन के बिना कोई भी सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि सोसाइटी में कोऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब सभी का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो सभी के लिए सुप्रीम है। तो इसका मतलब कोई भी दूसरे का ध्यान नहीं रखेगा और सेल्फिश एक्टिविटीज करेगा, उससे चाहे दूसरे को नुकसान हो। इससे क्या होगा, दूसरा पर्सन भी सेल्फिश एक्टिविटीज करेगा। जब सब सेल्फिश एक्टिविटीज करने लगेंगे तो कोई भी दूसरा आदमी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि किसी एक की सेल्फिश एक्टिविटीज की वजह से किसी दूसरे पर्सन के राइट्स जरूर वायलेट होंगे। अगर सब सेल्फिश एक्टिविटीज कर रहे हैं इसका मतलब सबके राइट्स किसी ना किसी के थ्रू वायलेट किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई कोऑपरेशन इज नेसेसरी इन अ सोसाइटी फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, अब मैक्यूअर ने कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी हैं, जैसे सोसाइटी मेंटेन करती है सोशल यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन सोसाइटी है, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी देयर आर इंस्टेंसेस जब सारा नेशन बिल्कुल एक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 October, irrespective of the religion from which you belong, if you live in India, if you are an Indian citizen, then the feeling of nationalism will definitely pump up on these occasions at least. Okay, तो सोशल यूनिटी बनाए रखने के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिन्हें मेंटेन किया जाता है। नाउ सोसाइटी हैज अथॉरिटी टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे पुलिस है, ये अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में होती है, और ये पुलिस ब्यूरोक्रेसी एटसेट्रा ये सब लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं ताकि सोसाइटी में केओस ना हो जाए, क्राइम्स ना बढ़ जाएं। इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल गो हैंड इन अ सोसाइटी, क्योंकि मैंने बताया कि अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा, सब सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे तो सबकी इंडिविजुअल लिबर्टी खत्म हो जाएगी। सो सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वैसे तो हम पेपर 2 में पढ़ेंगे, बट लेट मी गिव यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, ये यूनिक और पिक्यूलियर एक फीचर है हमारे इंडियन सोसाइटी का। देन जॉइंट फैमिली, अब कईयों को लगता है कि भाई जॉइंट फैमिली तो खत्म हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, लेकिन जब हम पेपर 2 में जाएंगे देन आई विल टेल यू कि स्टडीज हुई हैं जिन्होंने बताया है कि जॉइंट फैमिलीज आर एक्चुअली री इमर्जिंग इन इंडिया। सो जॉइंट फैमिली इज अ परसिस्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा मैरिज सिस्टम को हाईली सेक्रेड माना जाता है हमारी सोसाइटी में। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रीलोकल है, पेट्रियार्कल है। इसके अलावा देयर इज कल्चरल लैग। फॉर एग्जांपल घूंघट वगैरह की जो प्रथाएं हैं वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि देयर इज कल्चरल लैग, जहां पे हम अभी अपने कल्चर के पीक पे नहीं पहुंचे हैं। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई जस्ट टोल्ड इट टू यू फॉर द सेक ऑफ टेलिंग ओनली। पेपर 2 में ये सब मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी। सो नाउ मूविंग ऑन, देयर इज स्ट्रगल इन सोसाइटी। स्ट्रगल से क्या होगा, चेंज आएगा। और हम कहते हैं सोसाइटी इज ऑलवेज इवॉल्विंग। कैसे इवॉल्व होगी, चेंज से। चेंज कैसे आएगा, स्ट्रगल से। इसीलिए, और स्ट्रगल से क्या होगा, इवोल्यूशन। तो इसीलिए स्ट्रगल हमेशा सोसाइटी में रहता ही है। इसके अलावा सोसाइटी इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंसेप्ट। स्ट्रक्चरल कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं और वो हार्मनी में काम करते हैं सो दैट एक ऑर्गेनिज्म जो है अच्छे से काम कर पाए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चरल। अब फंक्शनल कंसेप्ट क्यों हुआ, जैसा कि फंक्शनलिस्ट ने बताया था कि सोसाइटी का जो हर एक ऑर्गन है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करती है, फैमिली जो है इमोशनल नीड्स को फुलफिल करती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है केओस से हमें बचाती है, हमारे जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उस नीड को फुलफिल करती है। तो इसी तरह
आप सभी बता इसे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपको सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं तो आप जितनी जगह पे हो सके आप नाम देंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जितनी जगह पे हो सके आप डालेंगे हेडिंग, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम को एज आई टोल्ड यू आप स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दें ताकि अलग से एग्जामिनर का इस पे ध्यान जाए। ओके, ये छोटी छोटी चीजें देखने में छोटी लगती हैं बट दे क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि ऐसा सबने नहीं किया होता। तो जो एग्जामिनर होता है कई बार उसे बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में कि बच्चे ने कहाँ क्वालिटी कंटेंट लिखा है। अगर हम अपनी क्वालिटी कंटेंट को ऐसे करके स्क्वायर बॉक्स में हाईलाइट कर दें तो एग्जामिनर को मतलब बहुत इजी हो जाता है पेपर चेक करना, और वो जल्दी जल्दी पेपर चेक करके खुश मूड में होता है, तो एक आधा मार्क्स बढ़ने के हमारे चांसेस हमेशा होते हैं। ओके, ना कल्चर एंड सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। अगर दो डिफरेंट कंसेप्ट है तो इनमें डिफरेंसेस भी होंगे। अब देखिए यहाँ ये कहता है दैट सोसाइटी इज अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। एज आई टोल्ड यू वी आर ऑलवेज सराउंडेड विद अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वेल कल्चर इज द सम टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न। कल्चर इज समथिंग जो हम लर्न करते हैं, सोसाइटी हम कभी लर्न नहीं करते, वी आर बोर्न इन अ सोसाइटी। वो सोसाइटी हमें सोशलाइजेशन के थ्रू सिखाती है कि उस सोसाइटी का कल्चर कैसा है, और धीरे धीरे हम वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सीखते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, अच्छा एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी है, डिसेबल्स की मदद करनी है, और उल्टा नहीं बोलना है, एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारे शुरू से चलती आ रही हैं। ओके, अब ये कंसेप्ट्स डीपली इंटर रिलेटेड हैं। नाउ मेंबर बिलोंगिंग टू द सेम सोसाइटी, उनका कल्चर सेम होता है, एक सोसाइटी में रहेंगे कल्चर सेम होगा, कल्चर सेम होगा तो दे विल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद ईच अदर, इससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ यूनिटी बढ़ेगी। ओके, जब फीलिंग ऑफ यूनिटी बढ़ेगी तो एक सोसाइटी के अंदर जो सोशल फैब्रिक है उसका स्ट्रोंग हो जाएगा। जबकि कल्चर क्या करता है, कल्चर डिपेंड करता है इसी सोशलाइजेशन पे, इसके ट्रांसमिशन के लिए। जब किसी सोसाइटी में सोशल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रोंग होंगे तो सोशलाइजेशन भी स्ट्रोंग होगी, जिससे कल्चर अच्छे से एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा पाएगा। और इसीलिए ये दोनों डीपली इंटरकनेक्टेड है। आपको इन लाइंस में से एक भी मिस नहीं करनी है। अगर आप आंसर लिखते हैं आपको ये लिखकर ही आनी है। ओके, now let us move on and see what are the basic differences between society and culture. Society first of all is a structural concept, इसे हम mainly structural concept कहेंगे क्योंकि सोसाइटी जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, जबकि कल्चर क्या है, फंक्शनल कंसेप्ट है। इसके अलावा सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि हम इसे छू नहीं सकते, हम सोसाइटी को सिर्फ समझ सकते हैं सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू। जबकि कल्चर जो है एब्स्ट्रैक्ट तो है ही, इसके अलावा ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो में जो सील्स पाई गई उससे उनके कल्चर का पता चलता है, लेकिन सील्स को तो हम छू सकते हैं। सो इट इज समथिंग विच इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। ओके, नाउ अदर एनिमल्स ऑल्सो डू पोजेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स, दे डू हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कल्चर इज यूनिक ओनली टू ह्यूमन बींग्स। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा सोसाइटी में देर इज हायरार्की। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कास्ट हायरार्की है, तो सोसाइटी में देर इज हायरार्की, जबकि कल्चर में देर इज कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि किसी भी कल्चर को आप उसी के कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखिए कि उस कल्चर में अगर कोई प्रैक्टिस है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो प्रैक्टिस क्यों है, उस प्रैक्टिस का भी कोई ना कोई एक आपको जरूर ऐसा फंक्शनल वो मिलेगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रैक्टिस इसलिए है, इसका होना क्योंकि इस सोसाइटी में जरूरी है, अदरवाइज सोसाइटी की कोई एक पर्टिकुलर नीड है जो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ओके, कल्चरल रिलेटिविज्म ने चैलेंज किया था कौन से व्यू को, एथनोसेंट्रिज्म को। एथनोसेंट्रिज्म क्या कहती थी कि वेस्ट में जो सोसाइटीज हैं वो डेवलप्ड हैं, और जो बाकी सोसाइटीज हैं वर्ल्ड की वो अभी डेवलप हो रही हैं, और वो जब डेवलप हो जाएंगी पूरी तो वो वेस्टर्न सोसाइटी की जैसी दिखेंगी। नहीं, जबकि सबका इवोल्यूशन का एक अलग पाथ है। इंडियन सोसाइटी एक अपने वे में डेवलप होगी, जरूरी नहीं है कि वो अमेरिकन सोसाइटी जैसे ही डेवलप हो, इट विल चोक आउट इट्स ओन पाथ। ओके, सो दिस इज कल्चरल रिलेटिविज्म। ना सोसाइटी इज अ मेंटल कंसेप्ट। ओके, ये मेनली मेंटल कंसेप्ट है, मीनिंग देयर बाय आप इसको छू नहीं सकते, ये सिर्फ आपके दिमाग में होता है दैट यस आई डू लिव इन दिस सोसाइटी। जबकि कल्चर क्या है, लर्नड बिहेवियरल पैटर्न है, इसे आप लर्न करते हैं, इसे आप लर्न करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे आप कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सकते हैं जो आपका कल्चर दिखाएं, आपकी ड्रेसेस भी आपका कल्चर दिखाती है, आप कोई ड्रेसेस बना सकते हैं जो आपका कल्चर दिखाएं। ओके, इट इमर्ज्ड वाया सोशल रिलेशनशिप्स, जो कि मैंने बताया सोशल रिलेशनशिप्स का वेब है। ये कैसे, ये टेक्नोलॉजी और बिहेवियर के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। नाउ इट इज अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट इज अ लर्नड बिहेवियरल पैटर्न, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट।
ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करने लगे, जब आप एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इस तरीके से इनमें लाइन मार देंगे और पूरे पेज पे आपका ये आए, बहुत खुला खुला सा लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो ढूंढने में, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो इस तरह से करके आ जाते हैं ऐसे। डोंट डू दिस, यू विल गेट एम्पल स्पेस। आपको ऑप्शनल की कॉपी में बहुत सारा स्पेस मिलेगा आंसर लिखने के लिए। आराम आराम से ऐसे लिखिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए, ऐसे फिर से टेबल बनाइए, अच्छे से हेडिंग डालिए, बहुत अच्छे से करके आइए सो दैट एग्जामिनर खुश होकर आपकी कॉपी चेक करे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी? एज आई हैव टोल्ड यू, आपने अभी पीछे देखा है कल्चर एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप्स के ऊपर मैंने आपको कम से कम 5 बेसिक लाइन दी हैं। इसके अलावा आप डिफरेंशिएट भी करके दिखा सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। डिफाइन सोसाइटी, अब एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर बुक में दिया नहीं हुआ था कि कितने मार्कर का है, लेकिन अगर 20 मार्कर का तो आई हैव टोल्ड यू कि आप तीनों डेफिनेशन लिख के तीनों के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दें। अगर ये 15 मार्कर का है तो 2 लिखें, उनमें से एक को एक्सप्लेन कर दें, और 10 मार्कर का है तो सिर्फ ये लिख के आ जाएं, डेफिनेशन लिख के आ जाएं। अब डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के फीचर्स मैंने आपको कराए हैं, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी नेम डालेंगे तो इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। ओके, सो आई एम पूजा who taught you this. So I've given 2 mains, that's why I do have experience and I'm telling you with my experience कि आप कॉपी में किस किस तरह से लिख के, एक्चुअली वहां पे हाफ मार्क्स की भी बहुत ज्यादा फाइट होती है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 1 मार्क से पूरा अपना सिलेक्शन मिस कर दिया एंड दे हैड टू री एंटर दिस साइकिल। ओके, सो डोंट लेट दैट हैपन विद यू। सिट वंस फॉर मेंस एंड sit and give your best. Okay, so this is all for today. I'll see you in next lecture. Till then, take care.